ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਥਰਡ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ PDF ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੇਟ ਹੋਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਾਰਟ 3 ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਥਡਸ ਫॉर ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਨਿਊਟਨਸ ਫਾਰਵਰਡ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਨਸ ਬੈਕਵਰਡ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਗੌਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸਟਰਲਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬੇਸਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮੈਥਡਸ ਫॉर ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ, ਜਦੋਂ ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਗਰੈਂਜੀ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਨਿਊਟਨਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆ, ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਹੈ 1 2 3 4, y ਹੈ 1 4 9 ਐਂਡ 16। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਆ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਇੰਟਰਵਲ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ, ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ 2 ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਥਡ ਆ ਨਾ ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ, ਇਹ ਇਕੁਅਲੀ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨਇਕੁਅਲੀ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਥਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਸਟ ਨਿਊਟਨ ਦੇ 3 ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ। ਦੈਨ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਟਨ ਫਾਰਵਰਡ, ਨਿਊਟਨ ਬੈਕਵਰਡ, ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਨ ਡਿਵਾਈਡਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਇਹ ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਇਹ ਮੈਥਡ ਅਤੇ 2 ਇਹ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ x ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਫਸਟ ਹਾਫ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਸਟ ਹਾਫ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ, ਇਹ ਫਸਟ ਹਾਫ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਫਸਟ ਹਾਫ ਚਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ 1.1 1.2 ਜਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਿਊਟਨ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਬੈਕਵਰਡ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 3.9 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਅਰ ਹਾਫ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਬੈਕਵਰਡ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਫਸਟ ਹਾਫ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਲਗਾਈਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਈਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਮੈਥਡ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਲਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਨਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈਗਰੈਂਜੀਅਨ ਇੰਟਰਪੋਲੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਇਕੁਅਲੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ
दे देंगे। हुण असीं कुछ क्वेश्चनस करांगे। हुण असीं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करांगे। क्वेश्चन सॉल्व करने तो पहले असीं न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला लिखांगे, फिर न्यूटन बैकवर्ड का फार्मूला करांगे। उहदे नाल तुहाडी एक कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी, सब तो पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करांगे। ये क्वेश्चन करने तो पहला न्यूटन बैकवर्ड तो न्यूटन फॉरवर्ड के फार्मूले की आ वो असी सब तो पहला डिस्कस करांगे। सब तो पहला न्यूटनस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, वो की है फार्मूला, वो असी डिस्कस करांगे। जो भी क्वेश्चन करने हैं ना, सब तो पहला असी फॉरवर्ड टेबल बनाना, उस तो बाद असी फार्मूला लगा के ये वाला फार्मूला जो मैं लिखण लग्या ये लगा के असी क्वेश्चन सॉल्व करांगे। की फार्मूला वा वो बड़े ध्यान नाल समझना। y(x) y0 प्लस p डेल्टा y0 प्लस p इंटू p -1 डेल्टा 2 y0 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस p इंटू p -1 p -2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 y0 प्लस p इंटू p -1 p -2 p -3 ओवर 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 y0 एंड सो ऑन। ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो असी यूज़ करना। वेयर पी की है, पी है साढ़े कोल x माइनस x0 अपॉन एच। एच की है जो भी साडा जो भी वैल्यूज़ गिवन होणगियां असी ये कहने ना कि इक्वली स्पेस्ड आ, इक्को जिहा डिफरेंस आ, वो कितना डिफरेंस आ वो असी एच दे नाल डिनोट करना। जो भी डिफरेंस होएगा ना, चाहे वो x1 माइनस x0 आ, चाहे वो x2 माइनस x1, ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ h ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करते हैं। तो वो सारिਆਂ ਦਾ डिफरेंस सेम होना चाहिए, फिर असी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाने हैं। ओके, इसी फार्मूला हुण y0 की आ किनों असी ओरिजिन सपोज करना, वो सारा कुछ जो असी फर्स्ट क्वेश्चन करांगे वो सारा कुछ क्लीयर करांगे कि ओरिजिन असी किस तरीके लेना। ये जो y0 डेल y0 डेल्टा स्केयर y0 जो भी लिखे हुए हैं नोट, ये किस तरीके चूज़ करने हो जो असी क्वेश्चन करांगे फिर क्लीयर होएगा। ये सी फार्मूला न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। हुण फरदर असी यूज़ करांगे, मैं लिखन जा रहा न्यूटन बैकवर्ड। हुण असी न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लिखांगे, आलमोस्ट सेम ही आ। बैकवर्ड सैकेंड फार्मूला न्यूटनस बैकवर्ड फार्मूला, उहदे विच की आ, एक तो इत्थे आएगा डेल, इत्थे भी आएगा p इंटू p +1 आएगा, एक आएगा इत्थे डेल स्क्वेयर, इत्थे प्लस इत्थे असी डेल उल्टा पावांगे। की फर्क है जो असी टेबल बनावांगे क्लीयर हो जाएगा तुहानूं। प्लस आएगा, इत्थे आएगा डेल 4। ये फार्मूला हो गया न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ रही होएगी। बस थोड़ी चेंज है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं। हाँ, एक चेंज होर कर लो, ये विच असी n यूज़ करना, इत्थे n 0 की थां ते असी n यूज़ करना। n किस तरीके लेना वो भी असी बाद विच समझते हैं। सो ये सी साडियां थोड़ियां जिहियां चेंज, ये सी साडियां जो भी चेंज दोवां फार्मूले च आलमोस्ट सेम ही है, कोई थोड़ा जिहा फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। ये सी न्यूटन बैकवर्ड। जो फस्ट एक्सरसाइज है साडी एक्सरसाइज 4.2 करन जा रहे हैं असी। एक्सरसाइज 4.2 अकॉर्डिंग टू शर्मा पब्लिकेशन। ये फस्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं लैक्चर के स्टार्टिंग भी तो एंड में भी एक्सरसाइज का एक तुहानूं शो कर दूँगा पेज। सो तुसीं वो क्वेश्चन जिन्होंने को बुक्स नहीं होणगियां वो क्वेश्चनस ईजीली फिर कर सकते हैं। हुण असी ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करांगे। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन असी हुण करन जा रहे हैं। फस्ट क्वेश्चन गिवन अ फंक्शन इन द फॉर्म, देखो एक्स गिवन आ,
ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन है। 2 पुट करोगे उस फंक्शन का 11 आएगा, 2.1 पुट करोगे तो 12.201 आएगा। इफ जे तुसी फंक्शन च 2.2 पुट करोगे तो आंसर ये आएगा, 2.3 पुट करोगे तो ये आएगा। एक चीज़ नोट करो, डिफरेंस सेम है। 2.1 चो 2 माइनस करो 0.1, 2.2 चो 2.1 माइनस करो अगेन 0.1, ये चो ये माइनस करो अगेन 0.1। सो डिफरेंस सेम आ। सो ये इक्वल डिफरेंस है सारे, इक्वल डिफरेंस है। सो इक्वली स्पेस्ड फंक्शन है साडा है। सो असी पहले जिहड़े 5 मैथड सी वैसे तो उन्हां चों कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हुण रिक्वायरमेंट की है साडी, उहदे अकॉर्डिंग असी क्वेश्चन करांगे। देखो की पुछया क्वेश्चन दे अंदर, असी न्यूटन जिद्दां कि तुहानूं पता ही है कि जिहड़ी फस्ट एक्सरसाइज आ, जिन्ने भी क्वेश्चन असी करने न्यूटन बैकवर्ड जां न्यूटन फॉरवर्ड दे नाल ही वो आपां करने आ। सो इत्थे न्यूटन फॉरवर्ड लाना जां बैकवर्ड लाना वो असी स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़ांगे, फिर तुहानूं क्लीयर हो जाएगा। हाँ जी, एस्टीमेट द ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमीअल विच माइट बी सुटेबल फॉर इंटरपोलेटिंग फंक्शन। हुण वो ये पुछदे पए आ कि जिहड़ी इत्थों पॉलीनोमीअल बननी आ उहदी डिग्री की होएगी। देखो ये असी जदों टेबल बनावांगे ना, टेबल तो ही क्लीयर हो जाना कि किन्ने ऑर्डर तक टेबल बनता। जिन्ने ऑर्डर तक टेबल बनेगा उत्थों सानूं ये पता चल जाना, उत्थों तक सानूं ये पता चल जाना कि किन्ने ऑर्डर की पॉलीनोमीअल बनेगी, इहदे विच किन्ने डिग्री की पॉलीनोमीअल बनेगी। उस तो बाद यूजिंग दैट पॉलीनोमीअल, फिर पॉलीनोमीअल फाइंड भी करनी, वो पॉलीनोमीअल यूज़ करके इंटरपोलेट वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस 2.05 फंक्शन की असी वैल्यू भी इंटरपोलेट करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है 2.05 ते। सो 2.05 बड़े ध्यान नाल देखो, फस्ट हाफ च आ रहा 2.05 लाइज बिटवीन 2 एंड 2.1। सो फस्ट हाफ च आ रहा। सो न्यूटन फॉरवर्ड मैथड अप्लाई करांगे। वो करने लिए सब तो पहले तुसी की करोगे, टेबल बनाओगे। कंसिडर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पहले असी बनावांगे। की करोगे, एक्स लिखोगे, इत्थे लिखोगे वाई। एक्स है मेरे कोल 2, दैन 2.1, 2.2 एंड 2.3, ये हो गई वैल्यू एक्स दियाँ। ओके, फरदर वाई दियाँ वैल्यूज़ लिखोगे। फस्ट वैल्यू 11, दैन 12.201, दैन 13.648, दैन लास्ट वैल्यू आ जी 2.3 पुट करते 15.167। सो ये सी गिवन फंक्शन दियाँ वैल्यू 2 पुट करते ये आती, 2.1 ते ए, 2.2 ते ए। तो जो साडी जो रिक्वायरमेंट आ वो फस्ट हाफ चलाई करती पई है। सो असी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करांगे। उम्मीद करदा कि तुहानूं ये समझ आ रही होएगी, उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ रही होएगी। हाँ जी, उस तो बाद असी डेल्टा वाई कैलकुलेट करना। की करना हुंदा, 12.201 चों तुसी 11 माइनस करोगे तो की आ जाएगा 1.201। दैन जो फॉरवर्ड फाइंड करना, दोवां माइनस करके फस्ट पोजीशन पर लिखना, बैकवर्ड करना तो इत्थे लिखना। हुण 13.648 चों 12.201 माइनस करोगे तो तुहाडे को आएगा 1.448 चों 1 किया तो 7 हो गया। इहदे तुसी 15 चों ये 13 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो तुहाडे को आएगा 1.519। ठीक है जी। 17 चों 8 माइनस करोगे, दैन 5 चों 4 करोगे 1, दैन तुसी करोगे 10 चों 11 चों 6 तो 5 आ गए एंड ठीक, बिल्कुल ठीक है। दैन फिर तुसी डेल्टा सैकेंड ऑर्डर के डिफरेंस फाइंड करोगे। ये चों हुण ये वैल्यू माइनस करो, ये चों ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो तुहाडे को आ जाएगा 0.246। ये तुसी 1.519 चों ये वाली वैल्यू नूं माइनस करोगे तो तुहाडे को आ जाएगा 0.072, ये आ जाएगा। इधे तुसी बिल्कुल सेम
लास्ट वैल्यू जी असी फाइंड करांगे डेल्टा क्यूब वाई माइनस करके देख लो ये चों ये माइनस करोगे पहली गल तो आंसर नैगेटिव आएगा नैगेटिव इत्थे आ जाएगा 6 फिर आ जाएगा 2 सॉरी ये चो ये माइनस करना गलत हो गया क्योंकि वड्डे च छोटा माइनस करीदा तो आ जाएगा 4 वो आ जाएगा 7 ओके फिर आ जाएगा 1 सो माइनस 0.174 ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਵਰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓਗੇ तो इस तरीके साढ़े कोल एक वैल्यू आ जाएगी एक टेबल बन जाएगा इस तरीके जड़ा कि अपवर्ड डायरैक्शन च बनेगा जिस तरीके साढ़े कोल अपर ट्रायंगुलर तो नहीं कह सकते सो इस तरीके साढ़े कोल वो वैल्यूज़ आनगियाँ ये फस्ट पोजीशन ये फस्ट लाइन च आ गई ये सैकेंड च आ गई ये थर्ड च आ गई तो हम बड़े ध्यान नाल समझना पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा एस्टीमेट ऑर्डर एस्टीमेट करने क्या उन्होंने फाइंड करना नहीं कि एस्टीमेट करो की आएगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर जोड़ा वो डेल्टा क्यूब आ सो जो भी पॉलीनोमीअल की डिग्री आनी है वो 3 आनी है वो 3 आएगी तो असी लिख देंगे सो फ्रॉम टेबल के नीचे लिखो मेरे को स्पेस नहीं हैगी फ्रॉम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जो पूछा सी उन्होंने की पूछा सी सो ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमीअल की आ गया ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमीअल आ गया साडा 3 सो ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमीअल आ गया 3 उस तो बाद असी पॉलीनोमीअल फाइंड भी करनी है क्योंकि उन्होंने कहा यूजिंग दैट पॉलीनोमीअल यूज़ करके इस पॉइंट पर वो फंक्शन की असी वैल्यू फाइंड करनी है हुण वो असी पॉलीनोमीअल बनावांगे वो किस तरीके बनानी है हुण बड़े ही ध्यान नाल समझो सब तो पहला स्टैप हुंदा पी कैलकुलेट करना पी का फार्मूला सी एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच हुण एक्स की आ एक्स नूं जदों भी पॉलीनोमीअल बनानी आ पॉलीनोमीअल के केस विच एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं पुट करनी उन्होंने एक्स ही रहन देना जे पॉलीनोमीअल नहीं कही तो फिर जो भी सानू एक्स गिवन होएगा असी वो यूज़ करांगे जे पॉलीनोमीअल बनानी है तो एक्स नूं तुसीं एक्स ही यूज़ करोगे दूसरी गल हुण जो भी सानू वैल्यू पूछी आ 2.05 लाइज बिटवीन 2 एंड 2.1 जदों भी असी फॉरवर्ड फार्मूला लगाना सो जिन्हों असी एक्स नॉट लेना वो असी आह वाली साड़ी पोजीशन होएगी ओरिजिन उतों पिछे वाली असी वैल्यू यूज़ करनी है जदों भी फॉरवर्ड फार्मूला लगाना बैकवर्ड के केस में असी उतों नीचे जावांगे फॉरवर्ड वाले केस में उतों असी पिछे जावांगे ये साडा ओरिजिन होएगा इनू असी एज ए ओरिजिन चूज़ करना कहने का मीनिंग आ ये वैल्यू साड़ी होएगी वाई नॉट दी ये वाली वैल्यू होएगी साड़ी डेल्टा वाई नॉट दी ये वाली वैल्यू होएगी साड़ी डेल्टा स्केयर वाई नॉट दी ये साड़ी वैल्यू होएगी डेल्टा क्यूब वाई नॉट दी उम्मीद करदा कि समझ आ गई होएगी कहने का मीनिंग आ असी फस्ट लाइन यूज़ करांगे सो साढ़े को एक्स नॉट कितना होएगा ये साढ़े कोल आ जाएगा एक्स नॉट की वैल्यू मेरे कोल कितनी आ गई 2 एच कितना मेरे कोल 0.1 वो किमें पता चलिया देखो एक्स दी वैल्यू डिफरेंस कितना अगे तो अगे 0.1 ऐड हो जा रहा जां तुसीं कोई भी दो वैल्यूज़ माइनस करके देख लो ये चो माइनस करो ये चो माइनस करो सारे का डिफरेंस सेम आ सो वो डिफरेंस है कितना 0.1 कहने का मीनिंग ये होया इनू जे असी 1/10 लिख लीए तो ये बन जाएगा साढ़े कोल 10x माइनस 20 ये साड़ी आ गई पी की वैल्यू हुण असी जस्ट फार्मूला लगाना तो वैल्यूज़ पुट करांगे तो साडा आंसर आ जाएगा मैं एक बार फिर रिपीट करदा क्योंकि वैल्यू 2 एंड 2.1 के लाई करती आ तो वो तो जो पिछली वैल्यू आ वो असी यूज़ करनी कहने का मीनिंग असी आह वाली वैल्यूज़ यूज़ करनिया जो भी साड़ियाँ इत्थे आईयां होणगियां बाकी साडे हुण काम दियां नहीं वैल्यूज़ उन्होंने मैं कर देना रफ तुसीं रफ नहीं करना मेरे को तो स्पेस नहीं ना है कि मैं तां रफ कर रहा सो इस तो बाद बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला
अप्लाई कर दो वाई एक्स इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब वाई नॉट। इत्थे हुण असीं वो वैल्यूज़ पुट करांगे क्योंकि डेल्टा क्यूब तक साडा जा रहा डिफरेंस, सो डेल्टा क्यूब तक ही फार्मूला लिखना। इत्थे असीं हुण वैल्यूज़ पुट करांगे। वट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई नॉट? वाई नॉट जो वाई के नीचे वैल्यू आ वो वाई नॉट विच इज़ 11 प्लस बी वैल्यू ऑफ पी इज़ 10x माइनस 20 ओके। डेल्टा वाई नॉट जो डेल्टा वाई नॉट के नीचे वैल्यू आ वो 1.201 ओके प्लस ये वाली वैल्यू पी सी मेरे कोल असी 10 बाहर कॉमन भी रख सकते हैं, जे मल्टीप्लाई किया तो वह भी ठीक है, तो तुसी बाहर उन्होंने कॉमन भी रख सकते सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो पी है मेरे कोल 10x माइनस 20 ओके। दैन 10x माइनस 20 चो 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 10x माइनस 21 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2। डेल्टा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करांगे तो वो आ जाएगी 0 पॉइंट। हुण देखो मैं इनू कर रहा रफ, मेरे को स्पेस की थोड़ी कमी है, 10x माइनस 20 असी ज़्यादा रख लें। सो डेल्टा स्क्वेयर की वैल्यू 0.246 प्लस इत्थे पुट करांगे पी 10x माइनस 20 10 ये 1 माइनस करोगे आ जाएगा 10x माइनस 21। दैन 10x 2 माइनस करोगे 10x माइनस 22 3 फैक्टोरियल इज़ 6 इंटू वैल्यू ऑफ डेल्टा क्यूब के जो नीचे वैल्यू आ वो सी माइनस 0.174। हुण इनू असीं सारे नू सिंपलीफाई कर लांगे तो साडे कोल एक पोलीनोमीअल आ जाएगी। हुण इनू असीं सारे नू सिंपलीफाई करन दी कोशिश करनी है। की करोगे वो हुण तुसीं आप करोगे, इनू मल्टीप्लाई कर लियो। इदां ही इन्हों पहले मल्टीप्लाई करियो, मल्टीप्लाई तो करना आंदा ही है तुहानूं, जो आंसर आएगा तुसीं इहनूं इहदे नाल कैंसल आउट भी कर सकते हैं। इदे तुसीं 6 नूं इहदे नाल डिवाइड करके देख लियो कितना आंदा, इन्हां तिन्नां नूं मल्टीप्लाई कर लियो तो तुहाडे कोल एंड 'च जाके आंसर कितना आना वो मैं लिख देना। आंसर आएगा तुहाडे कोल, आंसर आ जाएगा -29x क्यूब -29x क्यूब। सिंपलीफाई करने तो बाद वो तुसीं अपने आप करना 195x स्क्वेयर 195x स्क्वेयर दैन माइनस 421.8 माइनस 421.8 x माइनस प्लस 306.6 ये तुहाडे को रिक्वायर्ड पोलीनोमीअल आ जाएगी विच इज़ रिक्वायर्ड पोलीनोमीअल। जदों भी पोलीनोमीअल कह देन जां फंक्शन फाइंड करन कह देन तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। देखो डिग्री कितनी आई पोलीनोमीअल की, वो आई है 3 डिग्री आई है। तो असीं ये पहले एस्टीमेट कर लिया सी कि 3 आनी है क्योंकि डेल्टा क्यूब तक साडा टेबल गया सी, इस करके साडी जिहड़ी डिग्री है वो 3 आनी सी। उस तो बाद असीं पोलीनोमीअल भी फाइंड करते पे हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करदा कि पोलीनोमीअल फाइंड किस तरीके करते पे हैं असीं, वो एक बार तुसीं समझ लो। वो किस तरीके करनी, जो भी असीं पी फाइंड करना उत्थे एक्स की वैल्यू नहीं पुट करनी, एक्स माइनस एक्स नॉट पुट कर दो, एच पुट कर दो। सो तुहाडा जिहड़ी पी आ वो एक्स च होएगी तो तुहाडी वो पोलीनोमीअल तैयार हो जानी है। वाई नॉट की वैल्यू जो वाई की नीचे पुट करती, डेल्टा वाई नॉट हो गया, जो डेल्टा स्केयर वाली वैल्यू डेल्टा वाई 2y नॉट हो गई, डेल्टा क्यूब वाई नॉट हो गई, वैल्यूज पुट की फंक्शन सिंपलीफाई कर लिया तो इन्ना आंसर आ गया। हुण उस तो बाद उन्होंने ये कहा कि यूजिंग दैट पोलीनोमीअल, हुण कहते इस पोलीनोमीअल को यूज़ करो तो की करो इंटरप्लेट करो वाई एक्स कितना आंदा जो असीं ये पुट करते हैं तो की करोगे। हुण जिथे जिथे भी एक्स है उत्थे 2.05 पुट कर दोगे तो की आंसर आ जाएगा
एक्स क्यूब कहने का मीनिंग है 2.05 का क्यूब करना प्लस 195 2.05 स्क्वेयर माइनस 421.8 इंटू 2.05 प्लस 306.6 हुण इनू तुसीं सिंपलीफाई करोगे तो जो भी तुहाडा सिंपलीफाई करने तो बाद इत्थे आएगा वो तुहाडा आ जाएगा आंसर। तो मैं देख लेना कितना आंसर आना है। सो वो तुहाडा आंसर आ जाएगा 11.559 3 डेसीमल तक 11.559। सो ये असी एस्टीमेट कर ली वैल्यू 2 तो इन्नी सी 2.1 तो इन्नी सी 2.05 तो कितनी होएगी वो असी इत्थे कैलकुलेट कर ली कितनी होएगी वो 11.559। तो देखो 11 तो 12 के विच ही आ रही ना यदा मीनिंग ये होया बिल्कुल सही आंसर आया साडा। सो इस तरीके असी वो एस्टीमेट करनी है। हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी हुण असी नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3 करन जा रहे हैं। गिवन दैट साइन 45 डिग्री इज़ दिस साइन 50 डिग्री इज़ 0.7006 साइन 55 की वैल्यू जो इन्नी होवे साइन 60 की जो इन्नी होवे तो फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 52। ये भी हुण क्वेश्चन असी किस तरीके करना उन्होंने बड़े ध्यान नाल समझना। सो सब तो पहला जो मैं सपोज कर ला टेक वाई इज़ इक्वल टू साइन एक्स इस तरीके सपोज कर ला वाई साइन एक्स फंक्शन सपोज कर ला तो की होएगा बड़े ध्यान नाल समझना। एक्स वाई देखो मेरे को फिर की होएगा साइन ऑफ एक्स एक्स के थां ते की आ रहा 45 डिग्री। तो जो साइन 45 का जो आंसर है साइन एक्स का जो आंसर है उन्होंने असीं वाई दे नाल डिनोट करते पे हैं वो आएगा 0.7071। इदां ही जो भी एंगल है वो एक्स कंपेयर करके देख लो जो आंसर आना वो वाई। सो इत्थे आ जाएगा 50 जो 50 आ उदों आंसर आ रहा मेरा 0.7660 दैन 55 0.8192 एंड 60 ते वैल्यू 0.8665 60 हाँ बस हो 60 तक ही साढ़े को वैल्यूज़ ये है जी। हुण साढ़े कोल वैल्यूज़ असी टेबल बनावांगे बट समझो देखो साइन 52 तो असी वैल्यू फाइंड करनी है 52 लाइज इन फस्ट हाफ साइन 52 लाइज इन फस्ट हाफ। पहली गल तो ये ना कोई पॉलीनोमियल बनाने की सानूं जां फंक्शन बनाने की कोई इदां दी कोई गल नहीं की वो फंक्शन सानूं गिवन ही है वो फंक्शन असी सपोज किया होया वाई साइन एक्स वो तो असी फाइंड नहीं करना असी डायरैक्ट साइन 52 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बड़े ध्यान नाल समझो 52 लाइज बिटवीन 50 एंड 55 जिथे मैं एरो शो किया। सो 52 की वैल्यू इस पोजीशन पर आएगी। सो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला चूज़ करांगे क्योंकि फस्ट हाफ च आ रही है आ रही है असी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला चूज़ करांगे। सो पहला स्टैप की होएगा असी टेबल बनाना। सो पहला असी टेबल बनावांगे किहड़ा टेबल बना रहे हैं कंसीडर किहड़ा टेबल बनावांगे कंसीडर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कुछ बुक्स में की करते हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड का सेम बनाते वो सेंटर च वैल्यू लिख लेंगे बट असी इदा नहीं करना। फॉरवर्ड का टेबल इस तरीके उपर बनेगा बैकवर्ड का असी वो नीचे बनेगा। सो उस तरीके असी बनावांगे। हुण माइनस करिए। सो मैं वीडियो नूं लंबी होने तो रोकण लई थोड़ा रोक के टेबल बना देना क्योंकि कैलकुलेशन है। हाँ जी ये रहा जी साडा डिफरेंस टेबल ये अज साडा डिफरेंस टेबल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ये ये माइनस किया ये लिखा ये माइनस करके लिखा ये माइनस करके इतने लिखा ये माइनस करके ये माइनस करके ये माइनस करके ये आ गया। तुसीं कैलकुलेटर के नाल बड़ी ईजीली तैयार कर सकते हो। 52 लाइज बिटवीन 50 एंड 55 जिवें कि मैं पहले दसिया जो भी असी फॉरवर्ड फार्मूला चूज़ करना न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला चूज़ करना जिहड़ा ओरिजिन वाली वैल्यू आ जे 52 वैल्यू इत्थे लाई करती पई आ तो जो उहदे उपर वालियां वैल्यूज़ आ असी उन्हां वैल्यूज़ नूं चूज़ करना
इन्हां वैल्यूज़ नूं यूज़ करना। कहण दा मीनिंग है यही साडा ओरिजन आ, ये साडा ओरिजन आ। कहण दा मीनिंग ये होया कि ये जो भी वैल्यू आ ये साडी एक्स नॉट की वैल्यू, ये वैल्यू साडी वाई नॉट की वैल्यू, ओके। ये वाली साडी वैल्यू किहदी होई डेल्टा वाई नॉट की, तो ये होगी साडी वैल्यू डेल्टा स्केयर वाई नॉट की वैल्यू। सो बड़े ही ध्यान नाल समझना, असी ये वालियां वैल्यूज़ नूं यूज़ करना। ये होगी एक्स नॉट की वैल्यू विच इज़ 50, ये वाई नॉट की वैल्यू ये होगी डेल्टा वाई नॉट की, ये डेल्टा स्केयर वाई नॉट की वैल्यू होगी। सो पहला स्टैप की हुंदा, असी कैलकुलेट करना पी। पी फाइंड करन दा फार्मूला सी एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एंड एक्स की वैल्यू की है साडे कोल, असी 52 ते फाइंड करना। एक्स नॉट की है 52, सो 52 वो होगी एक्स की वैल्यू, जितनी असी वैल्यू फाइंड करनी। एक्स नॉट है जी साडा उस तो उपरली जी वैल्यू आ वाली 50 जो मैं मार्क कर चुकी हाँ। एच डिफरेंस कितना सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 का डिफरेंस आ रहा एक्स की वैल्यू 5, सो 2/5 ये आ गया 2/5, सो ये आ जाएगा 0.4। सो पी की वैल्यू मेरे को आ चुकी 0.5। हुण असी यूज़ करांगे बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इंटरपोलेशन फार्मूला वो असी हम फार्मूला लगा के वो वैल्यूज़ सबस्टिट्यूट कर देंगे। तो मेरे को नीचे स्पेस ना होने करके मैं ऊपरों रफ करके वो वैल्यूज़ पुट कर रहा। सो न्यूटन का फार्मूला अप्लाई करिए, वाई एक्स वाई नॉट पी डेल्टा वाई नॉट पी इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर वाई नॉट। स्केयर तक ही है साढ़े को वैल्यू, क्योंकि असी ये वाली वैल्यू यूज़ करनी साढ़े को डेल्टा स्केयर वाली ही हैं। सो जो मैं मार्क कर चुकिया पहले, मैं फिर रिपीट करदा 52, क्योंकि इत्थे आ रहा साढ़े को उस तो उपर वाली वैल्यूज़ नूं असी यूज़ करना। सो वैल्यूज़ पुट कर दो। एक्स सी मेरे कोल 52 तो असी वैल्यू फाइंड करनी है। सो वाई नॉट की वैल्यू है मेरे कोल 0.7660, दैन पी सी मेरे कोल 0.4, डेल्टा वाई नॉट है मेरे कोल 0.0532, दैन 0.4 माइनस 1 2 फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्केयर वाई की वैल्यू माइनस 0.0064। 4 डेसीमल तक सिंपलीफाई करोगे। कैलकुलेशन तो तुसी हुण आप ही करनी है। मैथड तुहानूं उम्मीद करदा कि क्लीयर हो चुका होएगा, तो तुहाडा ये कैलकुलेशन तो बाद आंसर आ जाएगा 0.788 समथिंग है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 4 डेसीमल तक। सो ये है जी साडा आंसर। ये वैल्यू किहदी आ गई, ये वैल्यू साइन 52 दी 0.7880। सो यही असी फाइंड करना सी। सो इस तरीके असी जिहड़े आ क्वेश्चनस वो सॉल्व करने हैं। नैक्सट हाँ जी, असी हुण नैक्सट क्वेश्चन करन जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड वाई ऑफ 2.5। एक्स गिवन है, वाई गिवन है। सब तो पहले असी देखो 2.5 लाइज इन सैकेंड हाफ, 2.5 लाइज इन लोअर हाफ कह लो, सैकेंड हाफ कह लो। सो कंसिडर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। सो असी यूज़ करांगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। एक्स वाई, एक्स 0 1 2 3 0 2 8 27। सो इत्थे आ जाएगा डेल ऑफ वाई 2.02 8 चो 2 माइनस करोगे 6, 27 चो माइनस करोगे 19। क्योंकि बैकवर्ड आ
माइनस करके नीचे लिखना हुंदा नैक्सट इस तरीके असीं टेबल बनावांगे। इत्थे नाले असीं डैल यूज़ करना, डैल स्क्वेयर। हुण 6 चों 2 माइनस करोगे 4, 19 चों माइनस करोगे 13, दैन डैल ऑफ क्यूब 13 चों माइनस करोगे 9। सो ये आ गया साडा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, जो कि बहुत ही ईजी है। इस केस विच असी 2.5 ते वैल्यू कैलकुलेट करनी आ एंड 2.5 लाइज बिटवीन 2 and 3। 2.5 लाइज बिटवीन 2 and 3 क्योंकि ये बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करते पे हैं, बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करते पे हैं, तो उस तो नैक्सट वैल्यू यूज़ करनी असी ये वालियां असी वैल्यूज़ यूज़ करनियाँ। मैं फिर रिपीट करदा, जो फॉरवर्ड फार्मूला लाना ना तो ही क्लीयर आ। जे वैल्यू सपोज करो इत्थे लाई करदी हुंदी तां असीं उस तो उपरली वैल्यू यूज़ करनी, जे बैकवर्ड आ जे वैल्यू इत्थे लाई करदी तां उत्तों असीं नीचे वालियां नैक्सट जिहड़ियां वैल्यूज़ आ वो यूज़ करांगे। कहण दा मीनिंग आ ये साडा हुण YN आ साडा हो गया XN, ये हो गया साडा YN, ये डेल्टा YN, ये डेल्टा 2YN, ये डेल्टा क्यूब YN, ये असीं हुण वैल्यूज़ यूज़ करनियां। सब तो पहलां कैलकुलेट करोगे P X माइनस XN upon H। X की वैल्यू 2.5 गिवन है, 2.5 माइनस XN की है उस तो जी नैक्सट वैल्यू, क्योंकि असीं बैकवर्ड यूज़ करते पे हैं, नैक्सट यूज़ करनी, जो फॉरवर्ड होए तो उस तो उपरली यूज़ करनी। सो इत्थे असीं यूज़ कर रहे हैं, ये मोस्टली नैगेटिव ही आंदा हुंदा। H की वैल्यू 1 का डिफरेंस है सारिਆਂ 'ਚ, सो 1। सो ये आ जाएगा माइनस 0.5 सिंपलीफाई करके। सो P की वैल्यू आ गई माइनस 0.5। हुण असीं यूज़ करांगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करांगे असीं। वो की है YN प्लस डेल YN P भी आना सी नाल प्लस P इंटू P प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर YN प्लस P इंटू P प्लस 1 P प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब YN। वैल्यूज़ पुट करांगे। YN की वैल्यू ये रही, ये XN की वैल्यू 3, YN की वैल्यू 27, डेल्टा YN, डेल्टा 2YN, डेल्टा क्यूब YN। सो 27 प्लस ब्रैकेट विच माइनस 0.5 ये होगी P की वैल्यू, P की वैल्यू सबस्टिट्यूट होगी डेल्टा YN इज़ 19 प्लस माइनस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्केयर 13 इंटू 13 प्लस माइनस 0.5 माइनस 0.5 प्लस 1 माइनस 0.5 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज़ 6 एंड वैल्यू ऑफ डेल क्यूब इज़ 9। सो इन्हों हुण तुसीं सिंपलीफाई कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। 6 ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैंसल भी हो रहा, इन्हों मल्टीप्लाई कर लोगे, सारे मल्टीप्लाई करके सारे ऐड करोगे तो तुहाडा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तुहाडा 15 पॉइंट, तुसीं कैलकुलेट कर सकते 15.3125 अप्रोक्सीमेटली इन्ना आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी, तुसीं लाइक भी करोगे। कोई चीज़ ना समझ आई तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ, तो नाल दी नाल तुसीं मैसेज भी कर सकते हैं। जिवें कि मैं पहलां दस्सिआ कि तुहानूं मैं कोशिश करूँगा कि जो असीं पहले पिछे भी असीं जिन्ने भी चैप्टर कर रहे हैं, चाहे लीनियर अलजेब्रा, चाहे न्यूमेरिकल एनालिसिस, चाहे न्यूमेरिकल मैथड, उन्हां दे नोट्स भी तुहानूं प्रोवाइड कराउण दी कोशिश कर रहे हैं PDF बना के। सो थैंक यू।